Good morning, students. As in our previous class, we have shared about the uh, introductory questions of the sociology, and we have now acquainted with the individual relationship between individual and the society. What is the relationship and the relationship with the individual and the other institutions, and we have also seen that how an individual is now influenced by the different organization or institutions, and how the individual and the other institutions are interrelated, and how an individual is constrained and controlled by the institution, and how the uh, uh, social process happens, and many of the concept about the sociology we had studied, and how the sociology and its concept had been observed and looked and defined by the different scholars like the Augustus Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, and so many scholars, sociologists, Herbert Spencer's, Darwin, Charles Darwin's, how they have seen the process of sociological process which is going and underwent in our society. We have seen about that, and now today we are particularly going to study about the and social groups and society. Social groups and society. We are going to study today in this class, and social groups and society. Here, social groups. Now we know that study the human social groups. One thing is the very clear: the human life. What is human life? The human life is the interaction. Interaction means the individual have the interaction. We all the individuals and the human beings living in societies have and doing the continuous interaction. Continuous interaction communicate and construct the social collectivities. हम we all are always interacting, creating and forming the collectivity. And now the comparative and historical perspective of sociology brings home two apparent facts. दो चीजें या टू फैक्ट्स comes before us कि फर्स्ट देखा जाए कि एवरी सोसाइटी इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर सोसाइटी, every society in the world have every society, whether the ancient society, whether the medieval society or the modern society, every society in the world have existed, whether it European society हो चाहे African society हो या Asian societies हो. Now every society women groups exist and collectivities exist हर जगह, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप्स हो या कास्ट ग्रुप्स हो या पॉलिटिकल ग्रुप हो या सोशल ग्रुप्स हो या कल्चरल ग्रुप्स हो, everywhere the groups exist. It means the man is a social animal. He or she can't be live alone or isolate from the society, deprived from the society. It's our nature. This is the, and moreover, the second facts which comes from
Groups and collectivities are different in different societies. Now, societies, the human beings form the groups and the society. But when we observe and see the societies, the European societies, the African societies, the Asian societies, every society differs. हर सोसाइटी में आप देखेंगे कि देयर इज नो compatibility, there is no resemblance in what respects, in culture, language, groups, attitude, relations. Some में in every respects they have the differences, and the differences exist in the societies. European people and society is quite different from the Indian society. African society is different from the Asian societies. So now these say two facts. Now groups exist, collectivities exist in all time, all the ages, whether the primitive time हो, या whether the slavery or masters की time हो, ancient time हो, या medieval period में भी देखिए, या modern times में भी. So this is a natural existence of the human beings and natural act of the human beings. The human beings always be in actions to form the collectivities everywhere. Now here, any gatherings, one thing is that आप कहेंगे कि सर या sociology groups, so every gatherings will be called the groups, where the peoples now gathers all of a sudden, and pelting the crowd, and pelting the stones on the public places, and any movements happens all of a sudden, any violence erupts, and pelting the stones. Now these gatherings of the peoples only can't be called as a group. अगर लोग एक जगह at one place at one time में अगर एक जगह collections हो जाता है peoples का, तो that we can't say कि this is the group now constitute a social group. No, aggregates are simply aggregates each collection of the people suddenly and at any point of time, at any place or any point of time the peoples collect at them. This will not be the called. So this aggregate of the people who are in the same place at the same time but share no definite, लेकिन एक जगह है but share no definite connections with one another. इनमें कोई definite connections नहीं. The people gather at one place and they have no any definite connections. Randomly they collected at one place. मार्केट में जाते हैं, ऑल ऑफ सडन क्राउड होता है वहां पे, तो हम ग्रुप नहीं कर सकते. दिस विल नॉट बी द कॉल्ड द ग्रुप. रेलवे स्टेशन वी गो देयर, एयरपोर्ट वी गो देयर, एंड वेयर दिस विल नॉट कॉल द ग्रुप. क्राउड कहीं भी है, मॉब भी है, इट विल बी नॉट कॉल द ग्रुप. द कनेक्शंस विथ वन अदर, क्यों कि इनमें कोई कनेक्शंस नहीं होता है. सब फॉर एग्जांपल्स मैंने कैसे कहा कि पैसेंजर्स gather at the railway station. Now there is no connections between amongst them. उसमें कोई connections नहीं है. Now there is no connection. Similarly देखा जाए सिनेमा हॉल में जो ऑडियंस है, they gathers at one place, but they can't form any group, any definite group, any definite recognitions, any natural bond, and recognitions they have no. Second, such aggregates are often termed as Kasi groups. ऐसे groups को जो कि किसी का एक definite recognitions नहीं है, कोई definite उनका एक connections नहीं है, all of sudden वो mob में चले गए, वहाँ भीड़ में they are there.
तो या और कोई डेफिनेट इनका कनेक्शंस नहीं है, तो ऐसे इस तरह के सच ए क्राउड्स, such a mobs can't be the called as a group, and such groups such groups and such gatherings can be the called just as the Kasi groups. Aggregates can be the Kasi Kasi group. Kasi means half होता है. This is the half group, not full recognized groups. This is the also called the Kasi groups, and Kasi groups is an aggregate. It means a combination of the people, gatherings of the people, which lacks in Kasi groups में या किसी gatherings में, or what the factors lack in them to be called as the group. पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे काशी ग्रुप्स का देयर इज नो एनी स्ट्रक्चर एंड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, कोई इनकी डेफिनिट कनेक्टिविटी नहीं होती, नो स्ट्रक्चराइज्ड, नो एनी ऑर्गेनाइजेशन. एंड सेकेंड थिंग्स इज दैट कि द हुज मेंबर्स मे बी अनअवेयर and the less aware. The members gatherings is the unaware about others and the less aware about the others. They are not much aware of each others. No connections at all. And secondly, further of the existence of groupings, इसमें उनमें अवेयरनेस नहीं है कि हमारा यहाँ कोई ग्रुपिंग है. स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, we wait for the train and the एट द एरोड्रोम आप जाते हैं, वेट करते हैं, जो भी है, तो वहाँ पे थोड़ी आप किसी से अवेयर रहते हैं या लेस और कोई इतने समथिंग यू हैव द एनीथिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग्स देयर, यू फील नो ग्रुपिंग देयर. आप ओनली यू आर वेटिंग फॉर अ प्लेन और ट्रेन, ओनली दैट, नो ग्रुप से यू मेक्स देयर. एंड सिमिलरली सोशल क्लासेस, सिमिलरली अगर देखा जाए, जैसे सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप, सोशल क्लास, पुअर क्लास, रिच क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग क्लास, स्टेटस ग्रुप्स, एंड एज वेल एज एज ग्रुप, जो डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, एंड फर्दर जो जेंडर ग्रुप्स हैं, दिस एंड द क्राउड कैन बी सीन एज एग्जाम्पल ऑफ काशी ग्रुप्स. जैसे क्राउड है, क्राउड है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जेंडर है, एज है, डिफरेंट एज ग्रुप्स है, जेंडर है, तो ये सभी काशी ग्रुप्स कहे जाएंगे. देयर इज अ गैदरिंग्स, देयर आर द पीपल एंड एसेंबलीज देयर, बट दे आर द नॉट हैविंग द डिफरेंट कनेक्टिविटी. तो इसीलिए फॉर दैट इज व्हाई these are the called. And as these examples suggest, Kasi groups may well become social groups in time. लेकिन these Kasi groups by the passage of the time can be maybe a group. Simple examples. मान लीजिए for examples, movements started. आप movements of in the Anna Hazare, he started the movement there. Very simple example. और this movement उन्होंने start किया, anti-corruption movement, but a gathering से started there, people's gathering, and this gathering से started, and by the passage of the time, a one segment of that gatherings, जो कि काशी groups था, that gatherings now converted into what? Into a political party arm. ये गैदरिंग्स एक पॉलिटिकल पार्टीज में टर्न हो गई. तो दिस इज नॉट this we cannot always say that these Kasi groups will always remain as a Kasi group. No, this aggregate or this Kasi group maybe the turned into a group by the passage in time or by the circumstances, any circumstances that can be converted into the group.
There is no any hard line and any hard mark. ओके, तो दीज काशी ग्रुप्स कैन बी द टर्न्ड इनटू द, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत से ऐसे मूवमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बाद वो क्या हुआ, वो पॉलिटिकल एक फॉर्म एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में टर्न हो गए। बहुत से सोशल मूवमेंट्स है साउथ इंडिया में, पॉलिटिकल एक सोशल मूवमेंट्स था दैट टर्न इनटू द पॉलिटिकल पॉलिटिकल ग्रुप and the political group. So suddenly some groups may be the Kasi groups may be the turned into the actual groups. वो actual groups में turn हो सकता है further by the passage of the time. And moreover, individuals belong to a particular social class and the caste. कभी कभी ऐसा होता है कि individual belonging to a particular social class and the community may not be the organized as a collective body. कभी कभी कलेक्टिव बॉडी के फॉर्म में वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं होता। कास्ट ग्रुप है, एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है, एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है और वो एग्जिस्ट करता है। एंड सोशल क्लास कास्ट मे नॉट बी ऑर्गेनाइज एज ए कलेक्टिव बॉडी बट दे मे येट टू बी द इन्फ्यूज्ड विद द सेंस ऑफ वी फीलिंग, और उसमें अभी वी फीलिंग आनी है। मान लीजिए कि एक भी बहुत से ऐसे कास्ट एंड ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं जिसमें कि वी फीलिंग किसी भी ग्रुप्स के लिए टू बी कॉल्ड ए ग्रुप, एक हार्ड फैक्टर्स है कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें वी फीलिंग होना चाहिए, हम लोग वी फीलिंग। एंड दिस तो अभी भी लॉट्स ऑफ ग्रुप्स आर सच ग्रुप्स which are lacking the we feeling, sense of we feelings. And moreover, likewise people of the different communities in India over a long time, एक एग्जाम्पल जैसे लीजिए कि फॉर ए लॉन्ग टाइम many group and communities in our country, they now led and launched the struggle against the British government. A long drawn struggles now went on, and under the struggle, different communities now came under the banner of the Gandhiji, under the banner of the Congress. And Congress was what? It was later on, it was the now a movement, later on turned into the party. Similarly, the long drawn struggles went on, and different communities and groups now come and join the movements. And now, as a result, what happened? For a long run, collectivity and group feelings now came. As against the Britishers, a sense of nationality was infused among these people who were doing the movements, who were involved in the movements against the British. In this process, what happened? All the people belonging to the different communities, different caste, and different geographical communities, they came together, got together, and ultimately they form a collective sense, a sense of collectiveness, a sense of national love, national devotions, and national feeling and love and devotion for the feelings. Now they all just groups felt it and now consolidated in what? You know, Indians feelings, national feeling, and national groups. Now these groups where there was no connectivity, but this turned into the national feelings or the nationals, and now shared, and they felt that they had their ancestors share the past, similar past. They have the struggle similarly, and this inculcated a feeling of the nationality, a unity, a group, a nationality, feelings of that form the groups. Different groups now comes under the feeling of nationality. So this is the, now we can't say that this Kasi groups may be the consolidated in the forms and groups and association also. Further, for example, women's movement brought about the idea of women's groups and organization.
जैसे वुमेन्स ग्रुप्स हम मानते हैं कि आइडियाज ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज वुमेन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, पहले वुमेन्स मूवमेंट ब्रॉट अबाउट द आइडिया ऑफ वुमेन्स ग्रुप्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ये मूवमेंट्स क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली चला, suppressed women now in our society, they now launched the movement, and now further and by the passage of time they form the women's different and hundreds of women's groups, not only the India, all over the world, and functioning. So this feelings, one, the gatherings and the movement forms the organization and the groups. In organized in a structured group, movement तो चला, women's movements, महिलाएं एंड वुमेन्स कलेक्ट हुई एक जगह एट द फॉर द मूवमेंट फॉर देयर डिमांड्स in the wake of their demands and equal demands. But what happened? This resulted into what? This movement resulted into the formation of different women's group. So now we see that these Kasi groups can be constituted and turned into the groups, structured groups and organization. I have to say this point to you, my dear students. Second thing, further, these examples draw certain attentions to how the social groups emerged and change and get modified. हमने देखा इसके साथ along with that, some of the characteristics of these groups. किसी भी इंस्टीट्यूशंस को आपको रिकॉग्नाइज करना है, किसी भी भीड़ को, क्राउड को, तो हम कैसे उसको ग्रुप कह सकते हैं? हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन कैन बी द कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ग्रुप? तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप इज व्हाट? इट इज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द सेकेंड, पहला इसका कंडीशन है। एंड दूसरा, amongst them there must be the interaction amongst the members. मैंने कैसे कहा कि रेलवे स्टेशन पे वेटिंग कर रहे हैं पैसेंजर्स, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, बट उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होता है। लेकिन द ग्रुप का मेन फीचर्स है या किसी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का कि देयर विल बी द इंटरेक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स एंड द मियर कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स डोंट मेक द ग्रुप, जैसे मैंने कहा। एंड सोशल ग्रुप्स इन द फैक्ट सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, इसमें इंटरेक्शन होना चाहिए ग्रुप के लिए। तो काशी ग्रुप में तो कोई जानता नहीं है, देयर इज नो कनेक्टिविटी हियर, एग्रीगेट में कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो कोई बात नहीं करेगा, कोई इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन एक ग्रुप में क्या होता है कि दे इंटरेक्ट, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का हो या किसी अदर एसोसिएशंस का। नेक्स्ट है, इसमें म्यूचुअल अवेयरनेस होता है। टू बी कॉल्ड एज अ ग्रुप है किसी भी कलेक्टिविटीज में, उसमें ऑलवेज एंड ग्रुप मेंबर्स अवेयर ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के प्रति अवेयर होते हैं। एंड द मोर ओवर एंड देयर बिहेवियर इज डिटरमिन्ड by the mutual recognitions, or their behavior is constrained and recognized by their mutual interaction. वो रिकॉग्निशन होता है उनमें, उनके बिहेवियर में एक रिकॉग्निशन, जान पहचान होती है। अब काशी ग्रुप्स में कोई जान पहचान नहीं होता है, नो रिकॉग्निशन। थर्ड थिंग ये है कि वी फीलिंग, नाउ द ग्रुप्स ऑलवेज नाउ रिप्रेजेंट्स एंड डिनोट्स द unity, we feeling unity and create the sympathy for each others. Group में सब में sympathy होता है, all each others, and it helps group members to defend their interest collectivity. और सभी जो ग्रुप्स कोई भी बनता है तो इसका एक एम होता है कि इसमें क्या होती है कि ये होता है व्हाट हैपेंस इन दैट कि एक इंटरेस्ट होता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट। कोई भी इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड कलेक्टिवली। उसको ऑल ग्रुप्स मेंबर्स आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू अचीव एंड मूविंग टुवर्ड्स टू अचीव देयर प्राइम एंड सुप्रीम गोल। तो ये कलेक्टिविटी इज कलेक्टिवली एंड इन ए सॉलिडरेटरी मैनर मूविंग अहेड एंड द टर्निंग अहेड। Understand? So this is the other features of the group. Next we are just going to the
ग्रुप से यूनिटी एंड सॉलिडिटी, ये ग्रुप पे यूनिफाइड होते हैं, सॉलिडिटी होता है। ऑफ ग्रुप्स लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, वेराइटी एंड द इमोशनल क्वालिटी ऑफ द इंटरेक्शन इन मेंबर्स। उसमें फ्रीक्वेंसी होता है इनके मीटिंग्स में, इंटरेक्शन में, वेराइटीज में, और नौ इमोशनल क्वालिटी होता है। एक भावनात्मक रूप से ये ग्रुप से जुड़े रहते हैं। एंड मोर ओवर इंटरेक्शन ऑफ द मेंबर्स, इनमें हमेशा इंटरेक्शन होता है। कोई काशी ग्रुप में इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई मॉब और भीड़ कहीं है तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होता। एंड मोर ओवर वी कैन से कि दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्रुप्स आर रिलेटेड टू बाय द सेवरल कॉमन इंटरेस्ट। इनका क्या है कि ये कॉमन इंटरेस्ट होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ, बहुत से ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप्स का अपना एक इंटरेस्ट होता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज भी एक मान लीजिए ग्रुप है, तो क्या इंटरेस्ट है उसका? टू नाउ ग्रैब द पावर, टू ग्रैब द पावर, टू सीक द पावर, दे आर द पावर सीकर्स। पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप है पावर सीकर्स, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? पावर गेट करना। हर ग्रुप का अपना, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, व्हाट इज द इट्स, तो ये इनका ये प्रेशर ग्रुप है। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरकार पे। क्यों? कि टू अचीव द इंटरेस्ट ऑफ देयर सेक्शन और देयर ग्रुप्स। तो दिस एवरी ग्रुप पे, जो भी ग्रुप बना है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक कलेक्टिव इंटरेस्ट होते हैं। फर्दर वी आर द कॉमन इंटरेस्ट होता है। ये नहीं कि आपका कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। ग्रुप्स में क्या होगा? ग्रुप का कॉमन इंटरेस्ट होता है। आपकी पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैज नो रूम एंड प्लेस देयर। एंड ग्रुप से फॉर्म फॉर कॉमन इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप and educational groups. There are so many. The national groups are the operating and functioning in the any country, but they have their common and their common interest. And moreover, similar behavior होता है। ग्रुप से are expected from the, किसी भी ग्रुप से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक सिमिलर बिहेवियर उनका रहेगा। Now they will work on the similar behaviors, understand? And moreover, common interest, similar behaviors, social groups now represents collective behavior to achieve their goals। ये क्या करते हैं कि collective behavior express करते हैं, represent करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं करते, इनका व्यवहार क्या होता है? एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है। फर्दर अगर देखा जाए, मोर कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स आर द नेक्स्ट ग्रुप्स नॉर्म्स। हर ग्रुप का अपना नॉर्म्स, एवरी ग्रुप्स हैज इट्स नॉर्म्स एंड द रूल्स, जैसे कस्टम्स, फोकलर्स, वेज, मोड्स, ट्रेडिशंस और कन्वेंशन एंड द लॉज। एवरी ग्रुप्स, चाहे वो आपका ट्राइबल ग्रुप्स हो, वेदर या कहीं कास्ट ग्रुप्स हो या कहीं पर्टिकुलर ग्रुप्स है या एसोसिएशंस है, एवरी ग्रुप्स इज नाउ गवर्नड एंड रेगुलेटेड वेदर बाय द लॉज एंड वेदर बाय द नॉर्म्स एंड वेदर बाय द मोड्स एंड ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस। एवरी ग्रुप्स, मोर साइज ऑफ द ग्रुप्स, हियर वी हैव टू। आप ये कहेंगे सर ग्रुप्स होने के लिए कितना बड़ा ग्रुप्स होना चाहिए, भीड़ तो होना चाहिए? नो एट ऑल, कोई जरूरी नहीं है। ग्रुप्स में भी फ्रॉम द दियार, इट मीन्स दैट कि फ्रॉम द फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली, मदर, फादर, चिल्ड्रंस, दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप। एक लिटिल से लेकर इतने लिटिल, राइट फ्रॉम द लिटिल फॉर्म टू अप टू द political parties, up to the nation, as broad as the nation, as little as the small, as little as a family. The groups may have the different size and forms.
ये जरूरी नहीं कि ग्रुप्स में बहुत गैदरिंग्स ही ग्रुप कहा जाएगा डिफाइंड, एंड दैट विल बी द टेकन अंडर दिस कैटेगरीज. नो, groups may be the varies. It's may have the different size and shapes. And for the next day, groups are dynamic. Groups are dynamic. New members comes, old now exit, and new ones joins the groups. And now change the slow and the slowly. It is the not a it is not a static. Group is always dynamic. Old one, new ones joins, old ones resigns and exits and goes, and some new born members becomes the part of the group, and old members now they exit from this, and due to the external or internal form groups change. कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एक प्रेशर है, इसके वजह से ग्रुप्स का जो फॉर्म होता है, जो उसका रूप स्वरूप होता है, नेचर, वो चेंज होता रहता है. कोई भी ग्रुप एक स्टैटिक्स नहीं होता, हर चीज एवरीथिंग्स कभी कभी चेंज होता है. और ग्रुप से में स्टेबिलिटी होती है. जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें इस ग्रुप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है. देयर इज नो प्लेटफॉर्म पर और बाजार मार्केट्स प्लेसेस पर ये जो क्राउड है कोई स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन ग्रुप्स में स्टेबिलिटी होता है. जैसे मान लीजिए कि मॉब है, ऑडियंस है, स्पेक्टेटर्स हैं, और ये टेम्पोररी और अनस्टेबल होते हैं. बट ग्रुप का नेचर क्या है? स्टेबिलिटी होती है. वो डिस्पर्सिबल नहीं होता है, डिस्पर्सिव नहीं होता है, वो स्टेबल होता है. एंड नाउ इन दिस वे वी सी दैट कि ग्रुप से आर. तो फर्दर मोर अगर हम देखें कि ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर देखा जाए कि सबसे पहला परसिस्टेंस इंटरैक्शंस टू प्रोवाइड द कंटिन्यूटी. ग्रुप्स के लिए एग्जिस्ट करने के लिए पहला है कि परसिस्टेंट इंटरैक्शन होना चाहिए टू प्रोवाइड द कंटिन्यूटी. ग्रुप्स को कंटिन्यू रखने के लिए, जनरेट करने के लिए आगे, इसमें परसिस्टेंस इंटरैक्शन हमेशा होना चाहिए, इंटरैक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसको एग्जिस्ट और सरवाइव किया जा सके. फर्दर अगर देखा जाए कि ए स्टेबल पैटर्न ऑफ दिस इंटरैक्शन, और इस इंटरैक्शन का एक पैटर्न होता है, एक सेट पैटर्न है इंटरैक्शन का, एक सिस्टम है जिसमें ये इंटरैक्शन होता है. देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज ए फ्रेम्स, देयर इज ए फॉर्मेट. इंटरैक्शन का क्या है? इसका एक फॉर्मेट है जिसके अंदर ये सारी इंटरैक्शन होते हैं. और मोर ओवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स होता है. सब में क्या है? सेंस ऑफ कि हम ग्रुप्स के मेंबर हैं. उसके मैंने कहा ना कि वी फीलिंग होता है ग्रुप में, और इसके साथ आइडेंटिटी होती है. हर एक ग्रुप में आपस का रिकॉग्निशन होता है, एक दूसरे को ये पहचानते हैं, रिकॉग्निशन होता है. इंडिविजुअल कॉन्शियस है अपने ग्रुप के प्रति. एवरी इंडिविजुअल इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हिज ग्रुप एंड ओन सेट ऑफ रूल्स. उसका क्या रूल्स है ग्रुप्स का, क्या व्हाट द रिचुअल्स ऑफ द ग्रुप्स इज दैट, एंड व्हाट द सिंबल्स ऑफ ग्रुप्स इज दैट. इसके टुवर्ड्स हर मेंबर्स, एवरी इंडिविजुअल इज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, much aware of their groups. Yeah, that is the feature. Say these are the main features of the group, and moreover, here we can say a sense of belonging से के साथ साथ शेयर्ड इंटरेस्ट. मैंने पहले भी आपको कहा कि इंटरेस्ट क्या होता है ग्रुप में? शेयर्ड इंटरेस्ट होता है कि ये सबकी इंटरेस्ट एक साथ एडज्वाइन होता है, एक साथ टुगेदर. ऑल द इंटरेस्ट आर adjoined and they bond together. Interests are bond together. Interest scattered नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट, माय इंटरेस्ट. नो लाइक दैट है. ग्रुप में एवरी वंस हैड द एक क्लस्टर ऑफ इंटरेस्ट. क्लस्टर ऑफ इंटरेस्ट यानी सब इंटरेस्ट क्लस्टर होता है, एक साथ बंधा होता है, और सेपरेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होता. मोर ओवर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज. और ग्रुप में सभी मेंबर्स क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं अपने ग्रुप्स के वैल्यूज को, फॉलो करते हैं, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं.
एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं उसको, उन अपने ग्रुप के अपने मेंबर्स का। मोर सोशल स्ट्रक्चर हियर रेफर्स टू पैटर्न ऑफ रेगुलर और रिपीटेटिव इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या चीज है कि दोनों एक्सेप्ट सेकेंड वन पॉइंट ए डिफाइंड डिफाइनेबल स्ट्रक्चर, इसका एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होता है ग्रुप्स का, यानी कि ग्रुप इज वेल डिफाइंड। ये नहीं कि आज भीड़ है कल चला गया खत्म हो गया, दैट्स नो dispersed. No, no, no. Group has the well definitions, well defined and consolidated, solidarity, not dispersible. So तो ये स्ट्रक्चर्ड होता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं इसके ग्रुप्स के, इसका जिसमें ग्रुप्स में स्ट्रक्चर होता है टॉप टू बॉटम, उनके अपनी डिफिनेशंस होते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उसके एक टॉप टू बॉटम जो पावर स्ट्रक्चर है उसका में डिफाइंड है, जो होल्ड करते हैं ऑफिस, इसी तरह से सिमिलरली ग्रुप्स में भी इसका एक स्ट्रक्चर एक डिफाइंड है, दैट अंडरस्टैंड। और इसीलिए ग्रुप को हम क्या कहें, हमने बार बार कहा कि स्टेबल होता है, ये डिस्पर्सेबल्स नहीं होता है, ये डिजॉल्व नहीं होता कभी ग्रुप्स। मोर ओवर सोशल स्ट्रक्चर है रेफर्स टू पैटर्न ऑफ रेगुलर और रिपीटेटिव, रेगुलर आई एम एंड रिपीटेटिव, बार बार, अगेन एंड अगेन नाउ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, हमेशा बार बार रिपीटेबली जो इंडिविजुअल है, जो मेंबर है उसका और उस ग्रुप्स में इंटरेक्शन होता रहता है। ऐसा नहीं कि गए एक दिन ग्रुप में, वन डे आई ज्वाइंड एंड द रेस्ट डे साल 2-4 साल गए ही नहीं उधर। नो, रेगुलर इंटरेक्शंस हैपेंस बिटवीन द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, दैट इज द एंड मोर ओवर हियर ए सोशल ग्रुप्स refers to collection of continuous interacting, मैंने पहले भी कहा कई बार आपसे कि एक collection of continuous interaction होता है, person who share common interest, और इसमें common interest की भी बात मैंने कहा, जिसको individual interest group में नहीं होता, common interest होता है, and culture, values, उनके culture, values, norms within a given groups, culture, values and the norms. So now here अब हम कहेंगे कि सर आप एक ग्रुप से डिफरेंट ग्रुप्स आर क्लासिफाइड, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स का को, तो वी कैन सी, हम कह सकते हैं कि दीज आर दी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस, बहुत से बेसिस हैं क्लासिफाइड करने का, ग्रुप को डिफरेंट नेम्स देने का या उसको डिफरेंट आइडेंटिटी देने का। जैसे पहला हम एक रेशियल फीचर्स के आधार पर हम ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं। रेशियल फीचर ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड, कैरेबियंस, ये हम रेशियल फीचर्स के आधार पे हम ऑन द ग्राउंड। सेकेंड रिलीजियस बिलीफ में हम कर देते हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, ये ग्रुप हम डिवाइड कर देते हैं। क्रिश्चियंस रिलीजियस बिलीफ के आधार पर भी ग्रुप बना देते हैं। और नेक्स्ट टेरिटोरियल्स आधार पे भी इंडियंस, मंगोलियन, चाइनीज, ब्रिटिश, तो ये टेरिटोरियल ग्राउंड पे भी हम ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कम्युनिस्ट, फासिस्ट, नाजी, ये सब नेचर ऑफ द जो गवर्नमेंट है इसके आधार पे भी हम ग्रुपिंग करते हैं। एंड नाउ मोर ओवर साइज पर भी और कास्ट पर भी हम ग्रुपिंग करते हैं। ये कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, ये ग्रुप हम बना देते हैं कास्ट ग्रुप से, उसके नाम। सेक्स के आधार पर भी हम ग्रुप बनाते हैं, मेल, फीमेल, लाइक दैट। एज पे ग्रुप, चिल्ड्रेन्स, ओल्ड, यूथ्स, दिस ग्रुप्स वी नाउ कॉल्ड। क्लास में भी कैपिटलिस्ट क्लास, लेबर क्लास, वर्किंग क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास। ऑक्यूपेशंस के आधार पर भी ग्रुप्स हम कर देते हैं, फार्मर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, ये और ब्यूरोक्रेट्स। ऑन द ऑक्यूपेशंस के ग्राउंड में बेस पर भी हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप का हम नेमिंग कर देते हैं। और इसके बाद ब्लड रिलेशनशिप के भी आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप एंड मोर, नेचर ऑफ सोशल इंटरेक्शंस के आधार पर भी ग्रुप बनाए जाते हैं। और परमानेंट ग्राउंड पर भी और टेम्पोररी ग्राउंड पर भी ग्रुप्स का नेमिंग किया जाता है। अंडरस्टैंड?
So my dear students, I suppose that you would have studied and understand well about the features of the groups, definitions of the groups. In fact the groups हम किसे कह सकते हैं and what is the called as the group का क्या features है, किसे हम किसे एग्रीगेट्स पीपल्स को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप को ग्रुप्स कहलाने के लिए फॉर द डिफिनेशंस क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी देयर, वी नाउ वी हैव सीन इन दिस टॉपिक। फर्दर अगर हम करें ग्रुप से का डिविजन्स हम या उसको कैटेगराइज अगर मॉडर्न टाइम्स में करते हैं, आज भी करते हैं, तो बेसिकली टू थिंग्स हम लेते हैं जनरली। एक डिफिनेशन एक सोशल ग्रुप्स का जब हम स्टडी करते हैं, हमें तो ग्रुप तो बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इकोनॉमिक ग्रुप हैं, उससे हमें नहीं, हमें फोकस किस पर करना है, हमें सोशल ग्रुप्स पर करना है, सोशल ग्रुप्स पर। तो सोसाइटी पर अगर हम फोकस कर रहे हैं तो उसमें ट्रेडिशनली हम दो ग्रुप्स को हम चूज करते हैं, या डिफिनेशंस के लिए दो ग्रुप्स पर हम फोकस करेंगे। पहला प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स। So this will be the subject of our discussion of the primary groups and the secondary groups. Okay, और भी कई ग्रुप्स आपको हम पढ़ाएंगे आगे, कई तरह के ग्रुप्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमारा अभी फोकस अगर हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में टाइपोलॉजी अगर हम ग्रुप्स का देखें तो उसमें प्राइमरी ग्रुप्स है, सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में अबाउट दैट इन द फर्दर क्लास आई विल डिस्कस अबाउट दैट। तो आई सपोज today I am going to wind up here, and the next class I will discuss about the different types of the groups related and social groups. Particularly our focus will be on the social groups, not the political and economic groups. Okay, so this is the all for that for this day. Thank you very much for attending the class. Okay.